Welcome everyone. My name is Jensha. I'm calling from Vidayu.com. Vidayu is a portal which is about alternate therapies. In life, alternate therapies has its own role. And today with us is Mr. Dinesh Bohra. He's an educationalist. Welcome, Dinesh. Thank you He's an very much. educationalist. He's an astrologer. He is Vastu and numerologist consultant. He's also a healer in nature and energy experts. So welcome Dineshji to Vedayu.com, and you are bundle of knowledge. You have in our few interaction I understood that there are many fields that you have an expertise on. However, today's topic we will like to know from you the importance of colors and its lives. So today's topic that we have selected for this live session is colors and health. So, uh, my Good first evening, Jane. good Good evening, evening. Jane, and good evening, friends. Yes. So, my first question to you would be: so we have people here. Hi, Karuna. Welcome to the live FB. Okay. So, my first question to you will be: how are colors relevant in our life? Life is always full of colors. Everyone loves the colors, whether it's white or black, blue, green, red. Everybody is obsessed with some kind of color. Obsessed. Yes, that's a good Yes, term that you are yes, using. yes, Obsessed. yes. And someone likes pink, someone black, someone green. So everybody has got a specific liking for that one. And colors has got its own history, its own, you can say, entire domain. And this domain is related with lot many things in the life. Uh, they can be the Panchatattva, Panchamahabhutas. They can be, it can be Ayurveda. It can be directions. It can be directional zones. It can be numerology, numbers. It Oh, can be zodiac signs. It can be chakras. It can be the color axis of the body. And sometimes it happens why body likes a particular color. I mean, you are going to shop something in the market, say, and you want to buy, but ultimately your body compels you to buy a particular color. You can say trouser or shirt or some other garment. And invariably, when you open your cupboard, you'll find a particular set of colors which is very prominent. So yes, yes. people are obsessed with colors. People like these colors, and everyone has got a specific liking for specific colors. In fact, that reminds me, my dress designer, have given me instruction. Now in your wardrobe, these are the color additions that I require. Stop buying 2 or 3 standard colors that you have been buying. So, can we analyze people also using the colors that they select in their wardrobe? See, Just extending it's a the very catchment is. Hmm. it's a very interesting science actually. See, the body can easily be divided into the seven parts. Now, I'm Hmm. not talking about the divisions as per the chakras. It's from top to bottom. It Hmm. can be divided into seven parts, and Okay. each part in the front of body and the back of the body, it can be checked with a Laker antenna, and it shows the color axis of the body. And you Wow. will not believe that it is in the form of vibgyor only, and on the backside also. And when we check it with the some kind of, you can say, the antennas, it will show the displacement of color. And this displacement of color or displaced color shows the ailment or the so-called problem with that part of the body. And sometimes Okay. when your body has a deficient color, a Hmm. deficiency of the color in the body, because it has to be matched absolutely. It has to be balanced absolutely. If you look into the Vibgyor system, the violet is there, indigo, blue, all kind of colors are there. Basically, have seven colors are there. You will definitely find here that some of these colors which are in a particular range, a particular, you can say, sequence, if they get displaced, then definitely in that part of the body there is a problem. And also that part of the body requires, or rather go for a particular color when you choose that one in the, say, for garments or something else. तो कलर्स के बहुत सारे एक तरह से क्या डोमेन्स हैं, बॉडी के एलिमेंट भी बता देते हैं, साथ में आपकी डेफिशिएंसी भी बता देते हैं, आपकी एलिमेंट्स बता देते हैं,
एक पूरी एक अम्ब्रेला है इसका, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि कलर का टॉपिक बहुत बड़ा टॉपिक है, ये छोटा टॉपिक नहीं है। Colors also have a frequency. कलर्स की फ्रीक्वेंसी है, चक्रास की फ्रीक्वेंसी है। जब हम लेकर एंटेना के ऊपर जानते हैं तो हर एक की फ्रीक्वेंसी वहां पर जब हम चेक करते हैं। Before we go ahead, will you explain the last word you said? Even I don't know that word. Which one? Last word that you said was color frequency is related to what? कलर फ्रीक्वेंसीज को हम लोग एक यंत्र आता है लेकर एंटेना, उसके ऊपर हम लोग explain us to a common person what is जी हाँ मैं बता देता हूँ। दुनिया में बहुत सारे डाउजिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। डाउजिंग एक आर्ट है। डाउजिंग दुनिया की सबसे पुरानी आर्ट है। आप सोचिए कि आज से 7,000 साल पहले जो हमारे पास रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं कि इंसान कहाँ रहता था, हमेशा पानी के पास रहता था, तालाब के पास, नदी के पास, क्योंकि पानी पहली जरूरत थी। ठीक बात है ना? अब अगर all human establishments from times are near the water sources. That's true. And if man was away from the water sources, then he had to dig the land to find the water there. Now the question is that where is the water in the land? So the very first science which emerged around 7,000 years back, and whose you can say the signs are still available in Libya and some other countries, that the dowsing is a technique through which people used to use the twigs of the tree and try to find out where exactly could be the water beneath the earth's surface. And then they used to dig that one or make a well there and find the water there. And slowly this technique was used later on to find the metals and minerals and other things also. And incidentally, you will not believe, Jane, that this dowsing technique, D-O-W-S-I-N-G, is still being used prominently all over the world. In India, they are called dowsers, and in some of the countries, they are also called diviners. So, diviners, okay. Yes, and they are still being used in India and many countries to find out the water, and particularly, you can say, other things also. आज भी कभी आप गुजरात में जाओ, महाराष्ट्र में जाओ, साउथ में जाओ, तो लोग अलग अलग टेक्निक यूज करते हैं। वो लोग एक वाटर के जो निकालने वाले लोग हैं, जो मशीनें लेके आते हैं, यहाँ पानी हो सकता है, लेकिन डाउजिंग एक्सपर्ट आपको एग्जैक्टली बता सकते हैं कि पानी कितनी गहराई पे है और कितना महीना पानी मिलेगा साल में। तो ये बहुत पुरानी टेक्निक है, नए इंस्ट्रूमेंट है। जिस इंस्ट्रूमेंट की मैंने बात की, लेकर एंटेना, वो एकमात्र ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट है जो बेसिकली फ्रीक्वेंसी बेस्ड है और वो उसके रिजल्ट जो है रिप्रोड्यूसेबल हैं। तो वो मैं तो उसको साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट मानता हूँ, बहुत सारे लोग नहीं भी मानते हैं, लेकिन हमने उस पर काम किया। So does this also give us color deficiency in the body? Yes, this instrument? Yes, it shows. ये हेल्प करता है हमको कलर डेफिशिएंसी को निकालने में। हमारी बॉडी की जो कलर एक्सिस है उसके अंदर क्या क्या डेफिशिएंसी है और जो कलर एक्सिस कितनी बॉडी से डिस्प्लेस हो गई है उसको भी निकालने में ये हमें मदद करता है। So it can identify the part of the body as well as lack of colors in certain part of the body. बिल्कुल 101%। इसीलिए जो कलर थेरेपी के अंदर जो ग्लासेस आते हैं उससे हम लोगों को कलर का जो डेफिशिएंसी है वो उनको देते हैं ताकि वो कलर बराबर आ जाए उनकी बॉडी। So Dinesh ji, instead of me asking you all the questions, I let me go online and there are questions coming from the viewers. So yes, we'll make it interactive rather than just being between both of us. So Ritika is asking, should we wear colors according to our aura color? Now this reminds me of one more thing to ask you. Do the aura have a same color or it keeps changing? Probably you can answer both the questions together. There are a lot of myths actually about the aura, and there are certain types of cameras being also available in the market which can photograph your aura or a person's aura. But this aura is basically a state of mind and it can change every minute or every moment. Maybe right now your mood is very good and your aura will be pretty good, and maybe after half an hour your mood is pretty bad. This aura will be very restricted then. So there is no, you can say sanctity to it or a kind of fixed, you can say, manual. It is not there. But aura is something which your body carries and it shows your mental, physical, psychological and emotional health actually, that how healthy you are.
If somebody is very healthy, then he can have the emotional powers, psychic powers, maybe the emotional powers, or maybe the physical powers. Apart from that, one can have the spiritual powers. Like you must have seen the old photographs of, say, Guru Nanak or Buddha or Bhagwan Mahavir, Rama or Krishna, or some other gods also, from other religions also. You see an halo around the head, actually, backside. That halo is basically aura. And each person's aura varies from maybe 1 feet to 2 feet or 3 feet. Some people have got for many meters or miles, even, I'm telling you. So people should one wear colors based upon the aura color? This is Ritika's question to you. We can wear it, but provided we get the right kind of aura and right kind of picture of it. But we think that if you wear it on the basis of some elements or the days means the Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, which has got a specific meaning. Like Sunday is a day of the sun, सूर्य का है, तो सूर्य का कलर होता है येलो और ऑरेंज होता है. अगर उस दिन आप ऑरेंज कलर पहनेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा. अगर सोमवार है तो चंद्रमा का कलर है, सफेद है, उसको पहनेंगे तो आपको फायदा होगा. गुरुवार है, गुरुवार फिर से गुरु बृहस्पति जुपिटर है तो पीला कलर है. शनिवार है तो काला कलर नॉर्मली हिंदुस्तान के अंदर हम लोग लाइक नहीं करते हैं. कई धर्मों के अंदर लाइक किया जाता है, लेकिन जनरली हम पहनते भी हैं. लेकिन काला कलर हमेशा कोई बहुत अच्छे कलर्स में काउंट नहीं होता है, क्योंकि ये सारी एनर्जीज को एब्जॉर्ब कर लेता है. वो दिक्कत है उसके अंदर. तो आपका जो ऑरा है कहीं ना कहीं डायरेक्टली आपके कलर स्कीम के साथ, आपकी मेंटल थिंकिंग के साथ जो होता है वो रिलेट करता है. इसमें कोई शक वाली बात नहीं है. लेकिन ऑरा आपके कलर को रिफ्लेक्ट करे ऐसा नहीं होता है. So, okay, then I'll take one more question before I ask you the question. Signing is asking, as we are sitting at home during COVID-19, there is no physical activity. Can I still lose weight? Shiny, let's skip this topic related to color. And if you have any questions which is related to color, please ask. Amit is asking, is there any color which is best in all the situations? So please, you can go ahead with the question. Nature is full of colors. But here, I would like to say there is no color which can be called as the best color or the worst color. Each color has got its own importance. As the Indradhanush, you can say the rainbow, it consists of comprised of 7 colors, and each color has got its own importance. Like if you say the violet color or the purple, you can say it basically represents something, a halo or something like God. Then if you go as per the chakras, then it is indigo. Indigo comes here. Then your blue comes here. Then the green comes to the heart. That's the Anahat chakra. Then YOR series below, yellow, orange, and red. That represents our Manipur chakra, Swadhisthana chakra, and the root chakra, which is Mooladhara chakra. So they have got a specific, you can say, domains of the work in the body itself, how they perform, how they connect with. Because this is what we are talking about, is how they impact our subtle energy body. Because we have got one physical body, but there is also one subtle energy body. That subtle energy body gets impacted by these colors. And when these colors sometimes in a sequence gets impacted, because like green is a central color, either from top or from bottom. If you look VIBGYOR, it is there. And this green color has got 2 shades, the dark green and light green. It remains around your Nabhi system, navel. Now, navel is basically your body's transformer of energy. And there, if it gets displaced, your entire body gets displaced and you lose the things, actually. Makes sense. So we have another question, and which is from Karuna. She is asking, hello, sir. How can colors help me grow in my business in terms of prosperity? Please give some guidelines. So how can one start making money and grow wealth? अब जैसे कि इसको मैं न्यूमेरोलॉजी के एंगल से लेता हूँ. जहाँ पे न्यूमेरोलॉजी के एंगल से लेता हूँ इसको, क्वेश्चन को मैं बहुत आसानी से इसको सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि मेरे पास उनको एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स नहीं है, बाकी डिटेल्स नहीं है करना के. लेकिन अगर इनकी डेट मुझे मिलेगी तो मुझे पता लग जाएगा कि ये किस तारीख को पैदा हुई या इनका बर्थ नंबर क्या है. उससे क्या होगा कि हर नंबर की एक इंपॉर्टेंस है. जो भी व्यक्ति सपोज किसी भी जिसका 1 नंबर है, 1 नंबर का मतलब होता है जो किसी महीने की 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख को पैदा हो, तो 1 नंबर का मतलब सूर्य के अंदर पैदा हुए आप. सूर्य का कलर क्या होता है?
पीला होता है, ऑरेंज होता है, व्हाइट भी होता है, ये और ब्लू भी पहन सकते हैं। ये कलर्स अगर वो पहनेंगे तो उनके लिए लकी होगा। अगर करुणा ये बता पाए कि उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है, या सिर्फ डेट ही बता दे अपनी बर्थ की, तो मैं तुरंत रिलेट करके बता दूंगा कि कौन से कलर लाइफ टाइम के लिए उनको ज्यादा सूट करेंगे इमीडिएटली। ठीक है, so we will see if we can get to there. Darshan is asking, is in this COVID times, which color can be used to stay calm? Oh, in world people are really facing mental problems. There is anxiety, there is stress, tension, many challenges that we have never seen in our lifetime. So how do one stay calm using colors? अभी लास्ट वीक ही मेरे पास एक केस आया डिप्रेशन का। अब कोविड-19 के अंदर डीप स्ट्रेस है, डिप्रेशन है। अब यहाँ पे लोग भारी तनाव में हैं, घरों में। इवन आज के कुछ न्यूज़पेपर में रिपोर्ट्स भी हैं कि घरों में तनाव की स्थितियां बढ़ गई हैं, स्ट्रेस की स्थितियां बढ़ गई हैं, जो मेंटल प्रॉब्लम्स है बढ़ रही हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। जब भी आप डीप स्ट्रेस में जाएंगे, इस बात का ध्यान रखिए, डीप स्ट्रेस को या डिप्रेशन को बढ़ाने वाले दो कलर्स हैं, एक है ब्लू और एक है व्हाइट। उसमें लाइट ग्रे, व्हाइट, हाँ, और एक लाइट ग्रे भी आता है। ये तीन कलर्स को आपको अवॉइड करना है। जब भी आप डीप स्ट्रेस में हैं, जब भी आप डीप टेंशन में हैं, अगर आप डिप्रेशन में हैं, एक बात का ध्यान रखिए, ऑलवेज वेयर द ब्राइट कलर्स। ब्राइट कलर्स आपकी जिंदगी में नई सुबह लेके आएंगे। एग्जाम्पल देता हूं, अगर कोई व्यक्ति डिप्रेशन में है या डीप स्ट्रेस में है, उसके रूम में ब्लू कलर का पेंट हुआ है दीवारों पर, या उसके आसपास कुछ ऐसी चीजें जो ब्लू कलर की हैं, व्हाइट कलर की हैं, आप और बीमार पड़ जाएंगे। ऐसे व्यक्ति के रूम में ताजी हवा आनी चाहिए, ताजी रोशनी आनी चाहिए, बिल्कुल बाहर खिड़की खोल के, और सामने कुछ फोटोग्राफ्स लगाने चाहिए, जैसे कि उगता हुआ सूरज, राइजिंग सन हो गया, फोटोग्राफ्स ऑफ द फ्रेश वेजिटेबल्स, फोटोग्राफ्स ऑफ फ्रेश फ्रूट्स, कलरफुल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कैन बी पेस्टेड। कहीं आपको ये फोटोग्राफ नहीं मिलेंगे, अपने कंप्यूटर पे जाइए, गूगल पे जाके सर्च कीजिए, उसको प्रिंट आउट ले लीजिए, उसे ही लगा दीजिए। कमरे के अंदर एक नई छटा आ जाएगी। जब भी लोग उगते सूर्य को देखेंगे तो जिंदगी में नई होप आएगी, पॉजिटिविटी आएगी, प्रोडक्टिविटी आएगी, और उसके द्वारा आपकी चीजें बेहतर होंगी। जब भी आप डिप्रेशन में हो, जब भी आप डीप स्ट्रेस में हो, हमेशा ब्राइट कलर्स का इस्तेमाल कीजिए, वो आपके डिप्रेशन को लेसन कर देंगे। ब्लू से दूर रहें, व्हाइट से दूर रहें, और इसकी चादरें, जो आपकी चादर वगैरह है बिस्तर की, वो भी यूज नहीं करें इस कलर की। आप ब्राइट कलर की चादर, avoid white and blue, use bright colors, and it also reminds me how much powerful is a visualization technique for well-being. Somewhere colors is important even to enhance our visualization technique. So anything you would to add on this topic? विजुअलाइजेशन एक ऐसा टॉपिक है जो बेसिकली आपकी जो इंट्यूटिव सेंस है उसके साथ ताल्लुक रखता है। इंट्यूटिव सेंस के साथ आपका हीलिंग भी ताल्लुक रखता है। ये चीजें इंटरलिंक्ड हैं। जो बात आपने कही है, इसको अगर इंटरलिंक करें तो हम उस चीज को अप्लाई कर सकते हैं सिर्फ अपने आज्ञा चक्र से या अजना चक्र से वहां पे, और ये बहुत पॉसिबल है। ये कोई मुश्किल चीज नहीं है, दुनिया में कोई चमत्कार की चीज नहीं है। ये विजुअलाइजेशन की जो टेक्निक्स हैं, ये कुछ खास नहीं होती है, सिर्फ थोड़ा सा कंसंट्रेशन चाहिए, ध्यान रखेंगे, आप कर पाएंगे उसको। आप जो चीज विजुअलाइज करना चाहें, आपको याद होगा कि एक सत्य साई बाबा होते थे जहाँ पे बैंगलोर में, अब वो नहीं है, उनकी बहुत मान्यता थी, बहुत लोग, करोड़ों लोग उनके भक्त थे। वो चीजों को अपने माइंड से विजुअलाइज करते थे। वो बेसिकली मनोमय कोश से बाहर निकल के विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश तक पहुंच जाते थे, और तब उनके पास वो पावर आ जाती थी विजुअलाइजेशन की कि उसके द्वारा वो चीजों को, जो उनके एलिमेंट्स हवा में हैं, उनको एक साथ करके चीजों में कन्वर्ट कर पाते थे। लोग कहते थे कि चमत्कार है, लेकिन ये चमत्कार नहीं है, ये एक साइंस है, बेसिकली योगिक साइंस है ये, और कुछ नहीं है। मैं आपको बताऊं, हर इंसान इसको कर सकता है। मैं ये कहता हूं कि दुनिया में चमत्कार नाम की कोई चीज नहीं है, सिर्फ योग है, मेडिटेशन है। आप अपने आज्ञा चक्र के द्वारा सब कुछ संभव कर सकते हैं। Sir, just taking this question ahead, Agya Chakra is one of the very powerful, chakra of our body. Agya Chakra के ऊपर कलर मेडिटेशन कोई करे तो कैसे करे?
आज्ञा चक्र का बेसिकली अगर नॉर्मल कोर्स में कलर देखा जाता है तो इंडिगो देखा जाता है, जो कि हमारा विब ज्योर के अंदर सेकंड आता है, क्योंकि जो वॉयलेट कलर है वो टॉप पे चला जाता है क्राउन चक्र के अंदर। ये चक्र जो आता है वो इंडिगो में आता है। इंडिगो लोगों को पता ही है, कलर थोड़ा डार्क ब्लूइश टाइप का रहता है, आपको मालूम ही है। यहाँ पर क्या है कि चीजों को विजुलाइज करने की जरूरत है। ये हमारा बेसिकली ट्रांसफॉर्मर है एनर्जी का। हमारी पूरी बॉडी का जो नर्वस सिस्टम है, जो कंट्रोल सिस्टम्स है, वो यहाँ से ओरिजिनेट होते हैं। हम उसको ब्लू के साथ इसके लिए कोरिलेट किया गया कि ब्लू जो है माइंड को काम करता है, माइंड को पेशेंट बनाता है, ठंडा करता है, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करने में एक तरह से, जैसे कि आप प्रकृति के पास गए, आपने वहां पे समुद्र देखा, नीले रंग का समुद्र है, या आपके पास कुछ फोटोग्राफ आ गए जहां पे किसी ऐसे जगह के जहां का समुद्र का पानी, जैसे मालदीव्स का ले लीजिए, फोटोग्राफ आते हैं तो दिल खुश हो जाता है देख के, कितना क्लीन वाटर है, ब्लू वाटर है, इवन द फिशेस यू कैन सी। तो ब्लू इज द कलर विच कैन काम द माइंड। इसके लिए ब्लू हमेशा यहाँ पे अजना चक्र के लिए रखा गया कि माइंड काम रहेगा तो सब कुछ काम हो सकता है। और खास तौर से जब हम अपने उंगलियों पे ये मुद्रा करते हैं, ये वाली मुद्रा अब लोग देख पाएंगे यहाँ पे, इसके द्वारा क्या होता है कि हम लोग, एक छोटा सा हिंट देता हूं कि इसके द्वारा क्या होता है, बॉडी के 3 पार्ट हैं, हेड है, ट्रंक है, लेग्स हैं, तीनों पार्ट अपनी जगह एक्टिव हैं। इस मुद्रा के द्वारा जब हम अपने लेकर एंट्रा से एनर्जी को चेक करते हैं तो सिर्फ इस पार्ट की एनर्जी को चेक करते हैं। अगर हम इस उंगली को छोड़ दें, मिडिल फिंगर पे आ जाएं, तो हम दोनों पार्ट डिटैच कर देते हैं, और खास तौर से हम ट्रंक जो है उसकी एनर्जी को हम डिटेक्ट कर सकते हैं। और अगर ये 3rd फिंगर पे चला जाऊं मैं यहाँ पे, तो मैं ट्रंक पार्ट की एनर्जी को जो है उसको मैं डिटेक्ट कर सकता हूं। और अगर मैं यहाँ पे आता हूँ लास्ट फिंगर के साथ, तो मैं पूरी बॉडी की एनर्जी को डिटेक्ट कर पाता हूँ। इस मुद्रा का, जो कि हमारी प्राणायाम की मुद्रा है, इसका मकसद ये होता है कि मैं अपनी पूरी बॉडी को प्राणायाम के दौरान अपने हेड को जो है बाकी सब चीजों से डिटैच कर लूं, खाना पीना, डिजायर, मजा सब अलग हो जाए, और सिर्फ मेरा ध्यान इसके द्वारा जो मैं अपना मेडिटेशन कर रहा हूं उसके अंदर हो जाए। इसके लिए ये मुद्रा है। तो नीला रंग बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए, माइंड को काम करने के लिए। So there are 2 questions which was related to current situation, anxiety, how to be calm, and how to come over anxiety. So not to use blue color and white color when it comes to but only for those blue colors are only for those not to be used, those who are under depression or deep stress, but they can still go for blue color meditation using Ajna Chakra. That is okay, right? Yes. So colors are white, and there are same color can be used for various reasons. That's what I am getting from this interaction. We have one more question, which is from Anuj. Which color promote well-being for women? So is there a specific color for women? क्वेश्चन बड़ा डीप है। वेल-बीइंग ऑफ ए विमेन, वेल-बीइंग ऑफ विमेन सिर्फ विमेन के हाथ में नहीं है। वेल-बीइंग ऑफ विमेन, उसके जो आसपास सब लोग जुड़े हुए हैं, चाहे उसके माता पिता हैं, उसके बच्चे हैं, या उसका पति है, या कोई और जो नियरेस्ट रिलेशन में है, उनके साथ भी जुड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं जब रिश्तों की बात होती है, तो रिश्तों को अगर आपको एकदम सूदिंग रखना है, तो काम रखना है, तो व्हाइट कलर से बेहतरीन कलर कोई नहीं होता। हालांकि नवविवाहित जोड़ों के लिए व्हाइट कलर मान्य नहीं होता है, वो लाल कलर उनके पास रहता है, लेकिन व्हाइट कलर ऑफ काम है, पेशेंस है। ब्लू कलर भी वही होता है। तो रिश्तों के अंदर हमेशा बहुत ज्यादा ब्राइट कलर्स आप इस्तेमाल ना करें, बहुत ज्यादा डल कलर्स भी इस्तेमाल ना करें, आप मीडियम कलर्स इस्तेमाल करें। और कोई खास मौका हो तो तब बहुत ब्राइट कलर में जाइए, जैसे आपकी वेडिंग साड़ी वगैरह होती है तो आप बहुत ब्राइट कलर में वहां जाते हैं। अदरवाइज डेली आप इतने ब्राइट कलर पहनेंगे तो शायद वो एनर्जी इनटॉलरेबल हो जाएगी आपकी बॉडी के लिए और आपके लिए भी, और आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बॉडी उसके लिए बनी नहीं है। बॉडी मॉडरेट कलर्स के लिए बनी है, जो एक तरह से कहते हैं उदारवादी कलर होते हैं, जो ज्यादा गहरा इंपैक्ट नहीं डालते। किसी किसी मौके पे आप डल कलर पहन लीजिए या बहुत ब्राइट कलर पहन लीजिए, लेकिन ज्यादा करके तो लेडी का जो आपने क्वेश्चन किया था, उनकी चीजें जो दूसरे आसपास के व्यक्ति हैं उनकी इमोशंस के साथ जुड़ी होती हैं। और दूसरी बात, यहाँ पे जब इमोशन की बात करता हूँ तो बहुत लोग इमोशनली डिस्टर्ब हो जाते हैं। इमोशनली डिस्टर्ब होते हैं तो एस्ट्रोलॉजर उनसे कहते हैं कि एक मोती पहन लो, पर्ल लास्ट फिंगर के अंदर। अब मोती पहनना, कई बार मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आए कि लोगों ने मोती पहना, मोती सफेद होता है, चंद्रमा का प्रतीक होता है,
लेकिन इंसान की बात बिगड़ जाती है, इमोशंस और बढ़ जाते हैं, वोलेटाइलनेस और बढ़ जाती है। जब वोलेटाइलनेस और बढ़ेगी तो महिला का जो संबंध किसी से भी वो बिगड़ सकता है, एक्सीडेंट हो सकते हैं। तो बिना एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट ढंग से देखे अगर आप दे देंगे, हो सकता है कि चंद्रमा बहुत फेटल हो, चंद्रमा वैसे भी आपको वोलेटाइल बनाता है, तो उसकी जगह चांदी का इस्तेमाल करें। आप सभी लोग A to Z, जिसका चंद्रमा अच्छा हो बुरा हो नहीं भी पता हो, आप भरपूर मात्रा में चांदी का इस्तेमाल कीजिए, सिल्वर का इस्तेमाल कीजिए। चाहे भले एक चेन डालिए या एक ब्रेसलेट डालिए, लड़कियां हैं पायल डाल सकती हैं या कुछ और चांदी का गहना डाल सकती हैं। पुराने जमाने में औरतें चांदी के बहुत गहने डालती थी, ये उनको इमोशनली कंट्रोल रखता था और परिवार में उनकी जो एक स्थिति होती थी उस चांदी की वजह से बहुत मजबूत होती थी। सो चांदी का स्टेबलाइजर का भी एक्ट है, डज इट एक्ट एज अ स्टेबलाइजर एज वेल? बहुत बड़ा, it has got great medicinal value. Okay, now when we are talking about women, I want to ask you one question. India mein traditionally most of the women, especially in Hinduism, they put bindi here, which is red color. So what is significance of putting red color bindi on Agna Chakra? मकसद ये है कि आज्ञा चक्र को स्टिमुलेट करना है और जो बिंदी है वो उसको स्टिमुलेट करती है। लेकिन आजकल हो क्या रहा है कि जितनी भी बिंदी आती है वो सिंथेटिक आती है। सिंथेटिक बिंदी इस फ्लो को यहाँ पे अपने एडहेसिव की वजह से ब्लॉक कर देती है। तो आपको वहां पे जो बिंदी लगानी है वो चंदन की लगानी है या एक जो नेचुरल एलिमेंट्स आते हैं लाल कलर के, हर्बल टैप आप कह सकते हो, लेकिन हर्बल में भी नकलीपना बहुत आ रहा है, जो आपकी यहाँ आज्ञा चक्र को स्टिमुलेट करते हैं, वो होना चाहिए। और तरह तरह की बिंदियां लगाई जाती हैं। महिलाएं दरअसल कई शेप की बिंदी लगाती आई हैं, एक नहीं है। साउथ में जाएंगे तो चंदन का तिलक लगाते आए हैं। चंदन का तिलक तो खैर सबसे अच्छा है वहां पे, क्योंकि चंदन आज्ञा चक्र के लिए बेस्ट माना जाता है, इससे अच्छा कुछ नहीं है। अच्छा। ठंडा भी माना जाता है, चंदन से ठंडा कुछ नहीं है। इवन जैनिज्म में everyone puts in fact chandan over here. मेरा कहना है कि बिंदी लगाइए, एक सुहाग की निशानी है, एक सौभाग्यवती होने की निशानी है, जरूर लगाएं, लेकिन ऐसी बिंदी लगाएं जो वहां पे एडहेसिव ना हो। वहां पे नहीं तो आपकी एनर्जी को ब्लॉक कर देती है और आपको फायदा देने की बजाय और नुकसान कर जाती हैं। आपका जो इमोशनल मेकअप है उसको बिगाड़ देती हैं वो। This is something very important that you have mentioned, especially for for women who puts sticker wala bindi. So kindly avoid sticker wala bindi, and if you want to use it with natural. कभी पहनना पहन दो, कभी कोई लगाना लगा लो शादी ब्याह के मौके पे वैसे, लेकिन नॉर्मल कोर्स में जो लगाना है वो आप अपनी नॉर्मल हर्बल जो है पुरानी टाइप की जो बिंदी रहती है जो स्टिमुलेट करती है उसको वो लगाएं। Right. Okay. So we have a question from Anita. She is asking any specific colors for students during exam stress. एग्जामिनेशन का स्ट्रेस जो है एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसलिए क्योंकि उसके अंदर डिप्रेशन भी आ जाता है, मैं आपको पहले बताऊं। और बहुत सारे बच्चे एग्जाम के दौरान और रिजल्ट से पहले और रिजल्ट के बाद सुसाइड भी कर लेते हैं, इतना डीपली उसके अंदर चले जाते हैं। बच्चों को दरअसल एक्चुअली मैं ऑथर भी हूँ 18 बुक्स का, और उसमें मेरी 2-3 किताबें बच्चों की साइकोलॉजी पे है, मैं आपको बताऊं। उस हिसाब से मैं अगर ये कहूँ यहाँ पे कि बच्चे एक टेंडर माइंड के होते हैं, एसएससी के बच्चे हैं, एचएससी के बच्चे हैं, उनमें वॉलेटाइलनेस बहुत होती है, माइंड को काम करना उनको बहुत जरूरी है। इवन आईआईटीज के अंदर बहुत सुसाइड केसेस आते हैं पूरे इंडिया के अंदर, प्रेशर बहुत ज्यादा है उनके ऊपर। So how can they use color therapy for students? ऐसा है कि जब भी वो बच्चे परेशान हो तो उसके लिए मैं एक अलग से सेशन बताऊंगा स्वर योग का, कि कैसे सिंपल टेक्निक से इंसान उसको कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि मैं स्वर योग पढ़ाता भी हूँ। स्वर योग के अंदर ऐसी टेक्निक है जहाँ बच्चों की मेमोरी रिटेंशन बहुत फास्ट हो जाती है, जहाँ बच्चों की जो एग्जामिनेशन देने की क्षमता बढ़ जाती है, रिजल्ट्स बेहतर आते हैं और बच्चे मुस्कुराते वापस आते हैं। लेकिन ऐसे मौके पे जब बच्चों को कलर समझ ना आए, सपोज कीजिए कलर समझ ना आए कि मेरा डेट ऑफ बर्थ कुछ और है, उसका कुछ और है, नंबर कुछ और है, तो एक लाइट क्रीम कलर की शर्ट पहन के चले जाएं। लाइट क्रीम कलर या लाइट येलो होता है, लाइट क्रीम, लाइट येलो, जिसको जी हाँ।
तो येलो से लाइट लाइट येलो कह सकते हैं, वो शर्ट पहन के चले जाएं। अगर और ज्यादा स्ट्रेस होता हो तो फिर ब्लू कलर की शर्ट पहन के जाएं, उससे माइंड काम रहेगा और आप एग्जाम अच्छा दे पाएंगे वहां पे, और आप परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास भी हो जाएंगे। So there was earlier a question by Karuna. She is asking, can color help me grow in my business? That is already covered. Now Karuna has one more question. Can color be used for curing disease or medical conditions? Yes, Your guidance on the same? yes, 101%, क्योंकि मैंने कलर एक्सेस के बारे में बात किया था। कलर एक्सेस आपको बताता है कि बॉडी के अंदर कौन से पार्ट में डेफिशिएंसी है, और वो डेफिशिएंसी हमारा हेड से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके विशुद्धि चक्र तक, यहाँ से बीच में आपका नाभि तक, नाभि से लेके हमारा कॉक्सिक एरिया है वहां तक, कॉक्सिक से हमारा नीस तक, नीस से एंकल तक, एंकल से फीट के 7 कलर्स आते हैं वहां पे। जब उसको हम लेकर एंटर से चेक करते हैं तो हमको एक पर्टिकुलर पार्ट का एलिमेंट पता लगता है कि इस बॉडी पार्ट के अंदर एलिमेंट है। जब वो पता लगता है तो कलर थेरेपी के द्वारा हम वो कलर को बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, उसको बैलेंस करते हैं, तो उसको मदद मिलती है वहां पर कि यस डेफिनेटली वहां पे क्योर हो सकता है। इवन जो कई बार तो जो बहुत एक क्रिटिकल डिसीज होती हैं उसके अंदर भी मदद मिलती है, मैं आपको बताऊं। तो कलर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द हेल्थ सिस्टम एक्चुअली। Wonderful. Thank you so much. We have just 2-3 minutes left. I will take 1-2 more questions. Any colors for pregnant ladies? प्रेग्नेंट लेडीज को हमेशा बहुत काम रहना आवश्यक है, लेकिन मैं उनको एक एडवाइस देना चाहूंगा कि हर व्यक्ति का जो एस्ट्रोलॉजिकल कलर और न्यूमेरोलॉजिकल कलर्स जो अलग होते हैं, अगर लोगों को फिर भी अगर कोई कलर समझ ना आए, अगर फिर भी कंफ्यूज हो, तो मैं कहूंगा कि फिर वो लाइट क्रीम कलर उनको पहनना चाहिए, क्योंकि वो कॉमन कलर है। लाइट क्रीम कलर या लाइट आप येलो कह सकते हो उसको, ये कॉमन। हाँ, जिसको कई बार हम आम भाषा में ऑफ व्हाइट कलर भी कहते हैं, हम घरों में नॉर्मली पेंट भी वही करवाते हैं ऑफ व्हाइट का। वो कलर आपको कभी भी नुकसान नहीं देगा, ये कॉमन कलर है दीवारों के लिए, आपके लिए, ये हमेशा आपको फायदा देगा। तो अगर नहीं समझ आए वो कलर पहनिए, आपको शांति मिलेगी और आपका हेल्थ अच्छी रहेगी। वंडरफुल। सो देयर इज वन मोर क्वेश्चन बाय अमित, कौन से ग्रहों के कौन से कलर है? सो अमित, ये क्वेश्चन हम प्रोबेबली नेक्स्ट टाइम लेंगे क्योंकि ये बहुत लंबा टॉपिक है। देयर इज, आई विल टेक वन लास्ट क्वेश्चन व्हिच इज बाय इकबाल खान। ही इज आस्किंग, हाउ डू नो व्हाट काइंड ऑफ कलर क्लोथ्स शुड आई वेयर? What type of कैसे पता चलेगा हमें कौन सा कलर के कपड़े पहनने चाहिए? ये डेट ऑफ बर्थ से पता लग जाता है। है जी, He is Aquarian. एक्वेरियन है तो उनको नीला रंग ज्यादा सूट करेगा। एक्वेरियन शनि का कलर होता है, तो उनको ब्लू कलर जो है ज्यादा सूट करेगा। ब्लू कलर पहने, लाइट ब्लू पहने, बहुत अच्छा रहेगा। जीन्स के साथ स्मार्ट भी लगेंगे और माइंड भी कूल रहेगा। जरूर पहनिएगा और आपको इसके द्वारा बहुत एक तरह से ग्रोथ भी मिलेगी, देखा जाए। सर इकबाल, आपका ब्लू कलर है, वेयर मोर ऑफ अ ब्लू एंड यू नो मेक दिस एज अ add-on things in your life. All right. Anything else that you would like to share with us before we end this session? मैं सर यही कहना चाहूंगा लोगों से कि कलर इज अ वेरी सेंसिटिव सब्जेक्ट. नेवर प्ले विद द कलर्स. If you just go for the fancy colors in the home paintings or somewhere else, you'll face the problems I'm telling you. क्योंकि आप कलर से खेलिएगा मत, क्योंकि जब कलर्स आपके साथ खेलना शुरू करेंगे ना, तो आपकी जिंदगी को कर देंगे बदरंग. तो कलर से सोच समझ के खेलिएगा. ये आपका मित्र भी है और शत्रु भी है. और कहीं आपने कलर से ज्यादा खेलने की सोची और आपने सोचा कि मैं अपने रूम को या अपने घर को या ऑफिस को रंग बिरंगा बनाऊंगा, तो आपकी जिंदगी को बदरंग बनाने में 4 दिन ही लगेंगे. आपके प्रॉफिट भी डाउन होंगे, माइंड भी चला जाएगा और नुकसान ही नुकसान होगा. तो कलर से खेलना मत, सोच समझ के. नहीं समझ आए, ये प्लेटफॉर्म इसी के लिए है जहां पे आज मैं बैठा हूं, इतने सब गुणी व्यक्ति सामने बैठे हैं. ये प्लेटफॉर्म इसीलिए, वेदायु इसीलिए कि आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो सके, क्योंकि ये सॉल्यूशन बेस्ड प्लेटफॉर्म है. आप प्रश्न करेंगे तो आपको ऑथेंटिक साइंटिफिक बेस्ड आंसर्स मिलेंगे यहाँ पर. Thank you, Dinesh. Thank you, sir, for sharing your expertise with us. A lot of my questions related color have been answered, and I hope viewers also have found some value out of it. And as Dinesh rightly said, this is a platform where we love to solve our problems, which is not answers for quite some reasons. So we have expert who will
will be here guiding us, answering our question. And next session that we will have is about astrology. So next Saturday, 6 o'clock, we'll have an astrology session with us by Mr. Anup Ji and Anup Gupta. So if you have any questions, you can write an email to us about astrology, and we'll take live sessions next Saturday. Thank you so much. Thank you everyone for being with us. आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सभी दर्शकों का शुक्रिया, वेदाइयों का शुक्रिया, जैन आपका और बाकी जितने भी आपकी टीम के साथ जुड़े व्यक्ति हैं, मेरा पर्सनली आप सबका, मेरी ओर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सब लोगों को हेल्दी लिविंग की शुभकामनाएं। See you next week. Thank you. Thank you.